Okay, students, I'm going to share holidays homework with you of physics. But before all the students are not there, what is the use? Okay, so let's wait for all the students to add. Okay. After your classes, I'll be sending the holidays homework, science holidays homework. So we were doing inertia of direction. Students, let us continue with that inertia of direction we were doing. But before that, I want to ask one question from you. Who will tell me that when a man standing in a moving bus jumps out of it, he falls with his head in the forward direction? Why? Yes. Who will tell? Yes, Karanveer. When a man jumps from a moving bus, एक सेकंड वीडियो ऑन करो बच्चे पहले वीडियो ऑन टर्न योर वीडियो ऑन बिफोर स्पीकिंग हुई नहीं अभी तक नॉट येट yes Karanveer you are not able to turn on the video yes okay so he won't be able to any other yes turn on your video before speaking Gurupal it is because of the inertia of the motion. If any body is in the motion, it tries to stay in the motion and resist any change in its state. what did I ask beta It is because of inertia of motion. no how you related bus and man here. When bus is moving already and the man who jumps out from the bus, he also walks or jumps with the motion, and so he feels a forward jerk because of the inertia of motion. Okay, but it's not so clear. You will say when the man is standing in the bus, he is having inertia of motion along with the bus. He is also in motion along with the bus, so he has this inertia. But when he jumps out of the bus and reaches the ground, his feet come in contact with the ground. ये कल मैंने बताया था. His feet come in contact with the ground and the feet come to rest. फीट को तो रेस्ट पे आना ही पड़ेगा बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ मैन is still in motion for a moment because of inertia. So he continues to move forward for a moment. So that's why he falls in the forward direction. This is the reason. So you have to explain that. All right, students. Fine. One more question can I ask? ये आप लिख भी सकते हो कॉपी में. Why do the blades of a fan keep on rotating for some time after being switched off? Yes. कौन बताएगा? ये inertia of motion में ही आप ऐड कर सकते हो. लिख लीजिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे. Inertia of motion में. Why do the blades of a fan? Why do the blades of a fan keep on rotating for some time? Why do the blades of a fan keep on rotating for some time after being switched off? You can leave the space for one paragraph here, inertia of direction, and then do this question. No problem. Okay, just one question of inertia of direction I am to cover. So leave one small paragraph of 5-6 sentences, and then you can write this statement. Why do the blades of a fan keep on revolving for some time or keep on rotating for some time after being switched off? कौन बताएगा ये? चलिए. Now you can tell me in your own words. आज मैं आंसर नहीं बताती, आप बताइए. चलिए. Yes. Yes, students. Any one of you?
Yes, students, anyone? Yes, करणवीर, आपकी प्रॉब्लम ये वीडियो ऑन नहीं हो रही है आपकी. चलो ये तो आप सुना ही सकते हो. हाँ बोलो. Yes. करणवीर. The blades of fan are still moving because when we switch off fan, they are not in contact with any surface, so they continue to be moved. What? Because they are already in motion, so they continue to move or not in contact with any surface. Contact क्या? ये बताने की क्या जरूरत है आपको? Are you reading from somewhere? No, ma'am. Then I don't think so. This is your own language. Tanveen, yes. Raise your hand. हाँ, Tanveen, आप बताओ. Wait, where is she? हाँ. Yes. Yes, ma'am. This is due to Newton's first law of motion. As when the blades are rotating, they are in motion, so they possess the inertia of motion. When the fan is switched off, for a movement, they are still in motion, so they keep on rotating for some time. So you will say just this thing that when the fan is rotating, first of all, the blades, they are in motion, so they possess inertia of motion. When we switch off the fan, due to inertia only, they will not come to rest instantly. They will keep on moving for some time till the resistance of air brings them to a stop. तो धीरे धीरे एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर का रेजिस्टेंस है, वो उनको स्टॉप पे लेके आएगा. So this is how you can write the answer. ठीक है? So your answer will be, this is due to Newton's first law of motion. When the blades of a fan rotate, they are in motion. When the blades of a fan rotate, they are in motion and possess inertia of motion. And possess inertia of motion. When the blades of a fan rotate, they are in motion, so they possess inertia of motion. When it is switched off, अब क्या होता है? When it is switched off, then blades keep on rotating for some time. Then blades keep on rotating for some time due to inertia. Then the blades keep on rotating for some time due to inertia till the friction of air, stops them. Till the friction of air stops them. Okay, so after it is switched off, the blades keep on rotating for some time till because the friction of air stops them. ठीक है, ये हो गया. अब चलिए inertia of direction. I told you कि if you are moving in a particular direction, you also become phobic of that particular direction. You want to remain in that direction only. ठीक है, तो आपको उसी डायरेक्शन का फोबिया हो जाता है. आप उस डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करना चाहते आफ्टर बीइंग इन दैट डायरेक्शन फॉर सम टाइम. ठीक है. So on the basis of that, I hope you have written the definition of inertia of direction. Have you written? Have you written the definition of inertia of direction earlier or not? Tell me. Yes. चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखिए. अब आप ये भी बस वाला ही होगा, तो लिखिए. आप पहले सुन लो क्या होता है. आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो बस में. ठीक है, तो एकदम से जो ड्राइवर है वो सडन इनवर्ड सर्कुलर टर्न ले लेता है. सर्कुलर टर्न पे जाके एकदम से वो बस को मोड़ देता है. ठीक है, हम कार का एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि कार ड्राइवर्स जो हैं वो बड़े स्मूथ ड्राइविंग करते हैं. यूजुअली बस ड्राइवर्स जो हैं उनकी रैश ड्राइविंग होती है, तो इसलिए हम बस वाले एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. सो व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ बस suddenly takes a sudden circular inward turn,
you have to, passengers have to hold the seats tightly. उनको seat tightly पकड़ के रखनी पड़ती. क्यों? Because they tend to fall in the outward circular direction, opposite outward direction. बस अंदर की तरफ टर्न ले रही है तो पैसेंजर्स बाहर की तरफ जो है गिरने की टेंडेंसी रखते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. वही चीज हो गई. इस केस में भी क्या होगा कि यू वर मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन, आप वो डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहते थे, ड्राइवर ने एकदम से आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी इनवर्ड. उसको कैंसिल करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए आपकी बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी. ठीक है, बाय टेंडिंग टू फॉल इन द ऑपोजिट आउटवर्ड डायरेक्शन. तो अब आप गिर ना जाओ तो पैसेंजर्स हैव टू होल्ड द सीट्स टाइटली, इसलिए उनको सीट्स टाइटली होल्ड करके रखनी पड़ती है. चलिए लिखिए ये क्वेश्चन, राइट डाउन. सो राइट डाउन, when the driver of a bus suddenly takes a circular inward turn, when the driver of a bus suddenly takes a circular inward turn, then the passengers have to hold the seats tightly. Passengers have to hold the seats tightly. Why? तो ऐसा क्यों होता? क्यों उनको सीट्स होल्ड करके रखनी पड़ती है? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अगेन दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो तो है ही है. फिर आप क्या बताओगे कि व्हेन द बस वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, पैसेंजर्स हैड इनर्शिया ऑफ दैट डायरेक्शन. लिख लीजिए, ये आपसे लिखा नहीं जाएगा. व्हेन द बस वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, when the bus was moving on a straight road, the passengers had inertia of that direction. ठीक है, when the bus is moving on a straight road, the passengers have inertia of that direction. ठीक है. When the driver takes a sudden inward turn, the bodies of passengers don't accept the change instantly. मतलब उसी time. The bodies of passengers don't accept the change instantly. And tend to fall in opposite outward direction. In the opposite outward direction, due to inertia. And tend to fall in the opposite outward direction due to inertia. तो ये रीजन है. ठीक है, अब डायरेक्शन में चेंज इनवर्ड हुआ तो वो उसको आउटवर्ड रिएक्ट करेंगे, ट्राइंग टू अपोज दैट चेंज. वो उसको अपोज कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करके उनकी बॉडी इस चेंज को शो करेगी. So that is the property of inertia. So we have done all the examples of Newton's first law of motion as well as all the examples of inertia also. So Newton's first law of motion is over now. ठीक है, now I'm going to share holidays homework with you. Let us discuss. हाँ, ये कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया. Yes, Raghav, what do you want? Karanveer, lower your hand. Yes, Raghav. Why did you raise hand? Where are you now?
चलिए लेट मी शेयर नाउ माय स्क्रीन. हाँ जी, ये देख रहे हो हॉलीडेज होमवर्क. सो देर आर ओनली 2 points ऑफ योर हॉलीडेज होमवर्क, और ये भी कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है. बोथ आर इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटीज, ईच कैरिंग 5 marks. वहां लिखा भी हुआ देखिए. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इज ऑल्सो 5 marks. मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑफ 5 marks. ठीक है, आपके जो 5 marks हैं PT1 के होंगे, रिमेनिंग 5 marks आपके कॉपी के होंगे. तो टोटल 20 marks की इंटरनल असेसमेंट है, राइट. तो सबसे पहले सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी देखिए क्या है. स्टूडेंट्स ऑफ रोल नंबर्स 1 to 15 of each section will click a high resolution photograph, concept photography कहते हैं इसको, of any phenomenon related to physics and explain the scientific principle behind. The format of photograph should be JPG or PNG and scientific principle should be typed on A4 size sheet. तो आपने कौन सा फिनोमिना आप क्लिक कर सकते हो अपने फोन से. आपने देखना है एनी फिनोमिना रिलेटेड टू नेचर, यू कैन क्लिक. फॉर एग्जाम्पल रेनबो, अगर आपने देखा वेकेशन में रेनबो बना तो आप उसकी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो. कोई इक्लिप्स लगा उसकी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो. स्काई में कॉन्स्टेलेशन कोई दिख रही है आपको, उसकी पिक्चर कैप्चर कर सकते हो. वीनस दिख रहा है आपको, पोल स्टार दिख रहा है, आप उसकी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. Then you can also click a beautiful picture of sunset or sunrise. तो ऐसा कोई भी फिजिक्स का फिनोमिना अराउंड यू आप उसको क्लिक कर सकते हो. ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ होनी चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एट एनी कॉस्ट बी कॉपीड फ्रॉम नेट. नेट से वो बहुत इजीली मुझे पता चल जाएगा कौन सी आपने फोटो कहाँ से ली. So this is your own creativity and this is your internal assessment activity. You have to do it yourself. जो 16 ऑनवर्ड्स रोल नंबर हैं वो केमिस्ट्री का करेंगे 16 से 30, और 31 ऑनवर्ड जो है वो बायो की पिक्चर क्लिक करेंगे. और साथ में उस फोटोग्राफ का साइंटिफिक प्रिंसिपल यू विल राइट ऑल्सो वेरी क्रिएटिवली ब्यूटिफुली ऑन A4 साइज शीट. बस एक शीट पे लिखना है, अपनी कॉपी पे नहीं लिखना. एक पेपर लेना है आपने, उसकी भी फोटो ले लेनी है, और जो पिक्चर आपने क्लिक की उसको भी स्कैन कर लेना है. इन दोनों की एक PDF बनाओगे आप एंड यू विल सेंड इन द फिजिक्स ग्रुप. इज दैट क्लियर? वो जो आपका फिजिक्स ग्रुप बना है उसी में आप ये पिक्चर्स जो है वो सेंड करो, राइट. तो यू विल सेंड अ PDF में 2 चीजें होंगी. एक तो आपकी जो फोटोग्राफ है उसका स्कैन्ड आपने लेना है, और दूसरी चीज आपने क्या करना है, एक A4 साइज पे जो आपका रिटन पार्ट है ना, उसका सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, उसकी फोटोग्राफ. ठीक है, दोनों की जो फोटोज हैं उनको मिला के एक PDF बन जाएगी. तो वो आपने मुझे सेंड करनी है फिजिक्स ग्रुप में. सेकंड है आपकी मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी. मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी में यू रीड इट आउट. You all know that Sir Albert Einstein received Nobel Prize in Physics for photoelectric effect in 1921. अब कौन सा चल रहा है? 2021. तो 100 years हो गए ना. Centenary celebrations are going on. The Indian Association of Physics Teachers is observing his Nobel Prize centenary celebrations in this year. तो 100 years complete होने के लिए ये साल जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो आपने स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ऑफ सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को लिखना है अपने वर्ड्स. ठीक है, सक्सेस स्टोरी का मतलब, स्टोरी राइटिंग मींस आपने सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की को नोबेल प्राइज के बिहाइंड क्या स्ट्रगल थी उस पे स्टोरी लिखनी इन योर ओन वर्ड्स. एंड दिस विल बी फॉर द होल क्लास. ये रोल नंबर वाइज नहीं है, ये पूरी क्लास के लिए फिजिक्स की एक्टिविटी. ठीक है, इट विल बी ऑल्सो 5 marks. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ? फाइन. तो आप लोगों ने क्या करना है, ये नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. 250 वर्ड्स में A4 साइज शीट पे आपने ये स्टोरी लिखनी है, और पिक्चर्स भी लगा सकते हो. टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मैंने आपको बताया सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज सर आइंस्टाइन ही ऑल्सो वर्कड ऑन E = mc स्क्वायर. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उन्होंने बहुत काम किया है, पर नोबेल प्राइज उनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो उसके लिए उनको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आई.
नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनके कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी। तो कैसे एक्सेप्टेंस मिली, कौन कौन सी उनको ऑब्स्टेकल्स आई अपने फील्ड में, कैसे उनको अल्टीमेटली नोबेल प्राइज मिला, और दूसरे लोगों ने प्राइज मिलने के बाद भी उसको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है, तो कैसे वो सक्सीड हुए, ये सक्सेस स्टोरी आपने लिखनी। It won't be any other story. It will be just based on Einstein's success story of getting Nobel Prize. ठीक है, तो उसको आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। All right, students. तो artistic presentation, novelty and idea will be highly appreciated as well. चलिए, तो ये है आपका हॉलीडेज होमवर्क। ये दोनों चीजें जो हैं आपने इसकी भी PDF बना के फिजिक्स ग्रुप में ही सेंड करनी है आफ्टर योर वर्क, और हम एक डे फिक्स कर लेते हैं, उसी दिन आप इसको पोस्ट करोगे वहां पे, पहले नहीं करोगे। तो दैट डे विल बी फर्स्ट डे आफ्टर योर हॉलीडेज ऑब्वियसली। तो आपकी हॉलीडेज खत्म होने के बाद जो फर्स्ट डे है उसमें आपने ये पोस्ट करनी है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आई कैन टेक अप सम क्वेश्चंस। हाँ जी, अब जिन्होंने हैंड रेज किया पूछ लो। यस जपजीत, बोलो। मैम मल्टीपल असेसमेंट हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं टाइप? मल्टीपल असेसमेंट यस यू कैन टाइप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टाइपिंग में अगर प्लेगरिज्म हुआ ना, प्लेगरिज्म क्या होता है? कॉपिंग। अगर आपने टाइप्ड मटेरियल गूगल से लेके उसको कॉपी कर दिया ना, मुझे पता चल जाएगा, तो इसलिए टाइप्ड आप रहने ही दो। वैसे जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना, यू नो, it's also written कि selected entries will be sent for national level competition. ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन चल रहा है, तो जिन बच्चों की एंट्रीज अच्छी होंगी उनको आगे नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए सेंड किया जाएगा। तो जिनका कॉपीड होगा ऑब्वियसली उनको सेंड नहीं किया जाएगा, तो जिनका सिलेक्ट होगा उनको हम बोल देंगे वो टाइप कर लेंगे बाद। हाँ जी गुरुपाल। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में MS वर्ड में टाइप कर सकते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट फोटोग्राफ का, फिर आपकी क्रिएटिविटी नहीं रहेगी उसमें कोई भी। क्रिएटिविटी कैसे शो करोगे आप? पिक्चर्स के थ्रू। वो तो फिर कॉपीड मटेरियल ही होगा, आप उसको खुद ही लिखिए, कोई बात नहीं, एक पेज तो लिख ही सकते हैं। यस राघव। यस बच्चे, आप हैंड रेज करते हो, बोलते भी नहीं कुछ, बोलो। मैंने पूछना था कि जैसे हम एक उनकी लाइफ की ऐसे बायोपिक वीडियो ऑन करिए पहले। हाँ बोलो। हमने जो लिखना है उनके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, तो उनकी कोई बायोपिक कैसे लिखना है? उनकी लाइफ स्टोरी सारी क्या? सिर्फ एक लाउडर, स्पीक लाउडर। मैम जो उनके बारे में लिखना है, जो पेज पे लिखना है फोटो के साथ में, वो सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट के बारे में लिखना है या लाइफ स्टोरी टाइप लिखना है? हाँ, आप स्टोरी टाइप ही लिखोगे। आप सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़िए। मैंने कहा कि उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नोबेल प्राइज मिलने तक की जो स्टोरी है वो आपने लिखनी। उनको कैसे नोबेल प्राइज मिला था मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देती हूँ। पहले क्या हुआ कि मैक्स प्लैंक ने, पहले तो किसी को इलेक्ट्रॉन्स का ही नहीं पता था, ठीक है। पहले तो मेन फाइट हो रही थी कि लाइट का नेचर क्या है, ये पार्टिकल्स हैं कि वेव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी होनी शुरू हुई, लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पता नहीं था। आफ्टर दैट फोटॉन्स के बारे में पता नहीं था, तो जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की स्टडी की, और वहां से उन्होंने कुछ फोटोन टाइप पार्टिकल्स जो हैं, उनका भी नेम बहुत बाद में वैसे 1926 में आया। फोटोन किसको कहते हैं? फोटोन आपको पता है ना, लाइट जिन पार्टिकल से मिलके बनी है उनको फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लैंक का कॉन्सेप्ट लाइट को लगाया। उन्होंने कहा मैं भी ये देखता हूँ कि लाइट, लोग कहते हैं वेव है, वेव है। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये पार्टिकल नेचर है लाइट का, लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है, ये वेव नहीं है। तो इसके पाथ में, इनके पाथ में इसलिए इतनी हिंड्रेंसेस आई। बहुत लोगों ने उस टाइम तक वेव थ्योरी ही मानते थे लोग लाइट को, तो वो मानने को रेडी नहीं थे कि लाइट पार्टिकल से मिलके बनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स फोटोन्स, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। फोटोन्स जब फॉल करते हैं मेटल पे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं।
तो लोग ये मानने को रेडी नहीं थे कि लाइट भी पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो इस रास्ते में उनके बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आई, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपोज किया उनको, तो फिर भी उनको 1921 में जाके इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला। पहले 1905 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इसको बताया, उसके बाद लोगों ने ओपनली उनको अपोज करना शुरू कर दिया। मिलिकन वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट। जो आपने Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला करते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, 10th में करोगे आप, वो मिलिकन साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा उनको रॉन्ग प्रूव करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड एपरेटस बनाया। अपनी पूरी टीम के साथ वो 10-11 साल लगे रहे कि मैं इनको रॉन्ग प्रूव करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि वो वेव थ्योरी के सपोर्टर थे। पर एंड में उनको भी मानना ही पड़ा कि उनकी इक्वेशंस बिल्कुल ठीक थी। तो ये उनकी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने वर्ड्स में लिखिए। थोड़ा आप पढ़ सकते हो नेट से, कोई बात नहीं है, बट आप डायरेक्ट वर्डिंग मत उठाइए, समझ के फिर खुद लिखिए उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर नाउ? आई होप नाउ द हॉलीडेज होमवर्क इज क्लियर टू यू, नो डाउट्स रिगार्डिंग दैट। चलिए ठीक है, किसी ने और कुछ पूछना है पूछ सकते हो। यस धैर्य। यस मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैंने यही पूछना था, जैसे राघव ने पूछा कि उनकी पूरी बायोपिक लिखनी, तो मैम वो बर्थ से लिखना है कि सिर्फ वो लिखना है कि उन्होंने कब से शुरू किया था फोटोग्राफिक? देखो आप ये भी बता सकते हो कि वो अपनी चाइल्डहुड से ही वाज अ जीनियस, ही वाज वेरी गुड एट स्टडीज, है ना, वो बता सकते हो। बट देन ही वाज फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन गेटिंग जॉब। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ देर बिना सैलरी के भी कॉलेज में वर्क किया, है ना, ये चीजें आप बता सकते हो। दे मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा ब्रीफली आप बता सकते हो। ओके, दैट इज अप टू यू कि 1 पेज में आप कैसे उसको सम अप करोगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा साइंटिफिक उसमें इतना ज्यादा वो लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो जस्ट मेक यू फेमिलियर ऑफ दिस फैक्ट, हमने आपको होमवर्क दिया है। यस तितिक्षा। मैम ये जो आपने इफेक्ट बोला, इसके रिगार्डिंग हमने ज्यादा मतलब पॉइंट्स लिखने हैं? नहीं, ज्यादा साइंस नहीं लिखनी है आपको, इसको इंटरेस्टिंग वे में बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ। वही तो हमने देखना है कि किस बच्चे को कितना समझ में आया और वो कैसे लिखेगा इसको। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए कि वो अपने चाइल्डहुड से ही जीनियस थे, ऐसे ऐसे उन्होंने पहले कॉलेज में वर्क किया, इतने साल लगे, उसके बाद उनको वर्क मिला, फिर सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई, उसके बाद उन्होंने किस फील्ड में काम स्टार्ट किया, उस फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे अल्टीमेटली नोबेल प्राइज लेके ही रहे वो। नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी कुछ लोगों ने अपोज किया, पर फिर भी वो ठीक ही प्रूव हुए, ऐसे आपने लिखना। ठीक है मैम, इसके बाद तो उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया था, वो सब कुछ लिख सकते हैं हम? क्या बनाया था? एटॉमिक बॉम्ब, जो हिरोशिमा और नागासाकी। एटॉमिक बॉम्ब सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं बनाया था बच्चे, आइंस्टाइन ने थोड़ी ना बॉम्ब बनाया था। चलो, उनकी जो भी डिस्कवरीज है ना, मैं आपको बता रही हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे उन्होंने ज्यादा वर्क किया था, और सब लोगों को ज्यादा उनको उसके बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, रिलेटिविटी के बारे करके ही पता है। ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला दिया था उन्होंने, ज्यादातर इसी के बारे में लोग जानते हैं उनको, पर उनको प्राइज एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। यही तो बात हम कर रहे हैं। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताना है और किसी इन्वेंशन के बारे में नहीं बताना इसमें। मैम हमारे इंग्लिश में यही चैप्टर है, तो मैम वो उन्होंने बताया था एटॉमिक बॉम्ब, हम वो वाला चैप्टर ही समझ चलो कर वो सकते हैं। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ आपने सिर्फ उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली डिस्कवरी बतानी है इसमें। ओके मैम। और कोई डिस्कवरी नहीं बतानी है। ओके, ठीक है, चलिए। यस मैम। Daryl, lower your hand if you don't have any doubt. ओके, पूछना है आपने कुछ, बोलो। यस मैम। मैम जो आपने वो बताया, जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट है फिजिक फिनोमिनन, हम उसमें हम सिंपल रेनफॉल भी ले सकते हैं, जिसके बीच हम प्रेसिपिटेशन का बता देंगे। रेनफॉल, रेन की फोटो खींच दोगे, उसमें इतना क्या, वो इंटरेस्टिंग फोटो होनी चाहिए बच्चे, कोई ऐसा कैप्चर होना चाहिए अच्छा, जिसमें फिजिक्स एकदम से क्लिक करे, जो थोड़ा सा फिनोमिना, जो रेयर फोटो हो कोई। रेन का क्या है, वो तो पता ही है सबको, तो 6-7 के बच्चे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी पता है उनको। थोड़ा सा वो रेयर हो कि रेनबो जैसे कभी कभी दिखता है, इक्लिप्स जैसे कभी कभी दिखता है, तो आप ऐसी कोई फोटो ले लीजिए, है ना।
चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें आगे। जस्ट हम एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, देन आई विल बी लीविंग यू। चलिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करने से पहले एक टर्म है मोमेंटम, हम वो कर लेते हैं एक बार बस, ठीक है। उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसका यूनिट लिख लेते हैं, देन इट्स ओके। सो राइट डाउन व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिंबल p, स्मॉल p। मोमेंटम होता है स्मॉल p, और होता क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितनी मोशन है, उसको रोकने के लिए कितना फोर्स नीडेड है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv। नोट कर लीजिए, वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी। So that means P is equal to mv के अकॉर्डिंग मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मास एंड वेलोसिटी। तो जो ऑब्जेक्ट हैवी है उसमें मोमेंटम ज्यादा होगी, ऐसे ही होता है ना। एक बुक का मास कम है, एक बिग हैवी आयरन बॉक्स का मास ज्यादा है, तो आप किसको अपोज करना मुश्किल लगता है आपको, किसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो है बॉक्स में। और वेलोसिटी जिसकी जो ज्यादा स्पीड पे आ रही है, अब एक साइकिल है, अगर तो बहुत स्मॉल स्पीड से आ रहा है, आपको हिट करे तो आपको कुछ नहीं होता, बट अगर वही साइकिल इतनी फास्ट आ रहा हो तो आपको तो बहुत इंजरी हो जाएगी, बिकॉज इट इज कंटेनिंग मोर मोमेंटम बिकॉज ऑफ मोर वेलोसिटी। ना यू कैन वेल इमेजिन कि एक छोटी सी बुलेट होती, इतनी छोटी सी बुलेट, वो कैसे एक पर्सन को किल कर सकती है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी इतनी हाई होती है कि वो पियर्स करके आगे निकल जाती है, ठीक है, वो फ्लैश में से भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो वो उसमें मोमेंटम इतनी ज्यादा है कि उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय मोमेंटम। तो अगर दूर से एक ट्रक और एक साइकिल आ रहे हैं, किसमें मोमेंटम ज्यादा होगी बताइए? ऑब्वियसली ट्रक में। ट्रक का मास इतना ज्यादा है साइकिल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए, अब आप इसका यूनिट निकाल लेंगे, क्या है यूनिट कितना है इसका, मैं बाद में पूछूंगी आफ्टर वेकेशन। और आपका एक होमवर्क ये तो रहेगा ही, वट एवर वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आते ही आपका उसका टेस्ट होगा। तो जितना हमने थोड़ा सा किया है एक्स्ट्रा क्लासेस में, आपने वो रिवाइज करके आना, ठीक है। इसका यूनिट लिखेंगे एंड यू विल टेल वेदर इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर, ठीक है। ये दो काम भी आपने करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू एंड आई टेक अप सम क्वेश्चंस बिफोर दैट। हाँ जी बोलिए।